Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part 4th of the video, that is sexual and gender identity disorder. Sexual disorders we have already discussed. Today we will go through the gender identity disorder. The gender identity disorder basically are the characterized by the disturbances in the gender identity. Gender identity, what does that mean? That is the sense of being whether male or being female, or the sense of one's masculinity or the femininity is disturbed, and that is called as gender identity disorder. And that group consists of the following, which I have mentioned, that is the transsexualism. It can be male or the female, and it can be primary or the secondary. Gender identity disorder of childhood, dual role transvestism, and intersexuality. The first is the transsexualism. Basically, this transsexualism, it is the severest form of the gender identity disorder, and it is characterized by, इसमें होता क्या है, normal anatomical sex होता है, ठीक है, whether a male or the female, but there is the persistent and significant sense of discomfort with his own sex, own anatomical sex, and the feeling that is inappropriate, how one can perceive one's gender, उसमें प्रॉब्लम होता है. नॉर्मली वो मेल होता है या फीमेल होगी, बट परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट होता है उसको अपने सेक्स के रिलेटेड. And there is a marked preoccupation with the wish to get rid of one's own genitals and the secondary sexual characteristics जो उसके अंदर होते हैं, वो उनको वो उनको चाहता है वो ख़त्म, मतलब चेंज करे, and to adapt the sex characteristics of the other sex. If he's female, he has a normal anatomical sex, but he wants to be have the genital of the another, that is the female, and also have the secondary characteristic of the females. And this diagnosis is also it is made after the puberty. Normal sex, anatomical sex होता है, but the person is not comfortable with his own anatomical sex, and there is always a wish to get rid of this one's genitals. Now types, basically the transsexualism is of two main types, the primary transsexualism and the secondary. The primary transsexualism, it has the onset in the early childhood and has a stable course over the period of the time, and this is primary transsexualism, it is more than the secondary transsexualism, and they are basically preoccupied with the sex changes or sex reassignment surgeries. पहले से ही उनको primary से ही वो when they cross the puberty, the first thing they want to get rid of their own sex, and they have the strong preoccupation of sex reassignment surgeries, which can be male or the female. For example, the male wants to become the female, ठीक है, and which is called as the male primary transsexualism, or the female wants to be a male, which is called the female primary transsexualism. And the secondary transsexualism, in contrast to the primary type, the secondary transsexualism usually has an onset later in the life, and it is basically the less severe form in this category. The only common feature is to wish to get the change in the anatomical sex, and this category includes the homosexuals, ठीक है. If they don't have the preoccupation of getting their basic preoccupation, जैसे कि हम देखते हैं प्राइमरी में उनको पहले से ही मकसद होता है कि नहीं वो सेक्स चेंज करेंगे, but in the secondary they can live as the homosexuals, having the sex with the same sex, तो वैसा हो सकता है. या ट्रांसवेस्टिज्म, जैसे हमने ऑलरेडी एक बार बोला था, who secondary become the transsexuals and the others.
Now the treatment of the this sexualism. बेसिकली अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट का एम जो होता है फॉर मेकिंग द person reconcile with his own anatomical sex या अरेंज सेक्स चेंज जैसा कि डिज़ायर करता है एक जेंडर, ठीक है। उसमें दो प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कि रिकॉन्सिलिएशन विद द एनाटमिकल सेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, देर आर ओनली ओकेजनल रिपोर्ट्स ऑफ अचीविंग दिस पर्पज इन द प्राइमरी ट्रांससेक्सुअल्स। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ द सम मेथड्स लाइक द साइकोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए से उनको रिकॉन्सलेशन किया जाता है, मतलब रिस्टोर करते हैं थ्रू द साइकोथेरेपी और द बिहेवियर थेरेपी, कि वो अपने ही सेक्स से सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। उनको ऐसे ही साइकोथेरेपी किया जाता है, 1-to-1 साइकोथेरेपी किया जाता है, ताकि वी चेंज द माइंड ऑफ द person and he gets satisfied by his own sex, जो कि इसमें रिकॉन्सिलेशन ऑफ विद द एनाटमिकल सेक्स में होता है। दूसरा हम करते हैं सेक्स चेंज टू द डिज़ायर, जो वो क्या इसको बोलते हैं प्रोसीजर होता है। उसमें हम टोटली सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जिसको बोलते हैं, टोटली सेक्स चेंज करते हैं एंड क्या उसको बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे उसमें हम फैलोप्लास्टी करेंगे या कैस्ट्रेशन करेंगे, मैस्टेक्टमी कर सकते हैं, हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रोसीजर्स इन द कॉम्बिनेशन और इन द सेपरेशन हम वो करके एक इंडिविजुअल का टोटली जेंडर चेंज करते हैं। सो ये दो ट्रीटमेंट्स आते हैं इन द व्हाट इज़ कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांससेक्सुअलिज्म। Now coming to the dual role transvestism. Dual role transvestism ये इसमें it is characterized by wearing of the clothes of the opposite sex, ठीक है। जैसे उसमें भी हमने बात की थी, इससे पहले भी ट्रांसवेस्टिज्म की बात आई थी। सो दूसरे का क्लॉथिंग पहनना है, मतलब ऑफ द अपोजिट सेक्स, ही एंजॉयज दैट इन ऑर्डर टू गेन द टेम्पररी एक्सपीरियंस या टेम्पररी enjoyment by experiencing that sort of कैरेक्टर या मेंबरशिप ऑफ दैट अपोजिट सेक्स। फॉर एग्जांपल गर्ल पहनेगी कुछ देर के लिए बॉय के कपड़े और उस टाइम के लिए वो एंजॉय करेगी उसका कैरेक्टर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। बट इसमें कोई डिज़ायर नहीं होता है या कोई ऐसा प्रीऑक्यूपेशन नहीं होता है कि वो परमानेंटली सेक्स चेंज करे, जो कि अनलाइक जो हमने पिछले में देखा इन द ट्रांससेक्सुअलिज्म। एंड देयर इज़ नो सेक्सुअल एक्साइटमेंट ऑल्सो जो क्रॉस ड्रेसिंग से होता है, जो ट्रांसवेस्टिज्म में हमने ऑलरेडी डिसऑर्डर्स में बात की थी, लाइक फेटिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म। उसमें अगर वो दूसरे के कपड़े पहनता है तो उसमें वो सारा क्या उसको बोलते हैं अराउजल्स आ जाते हैं, बट इसमें कुछ नहीं होता है। बस वो फॉर अ टाइम बीइंग उस स्पेसिफिक सेक्स का कैरेक्टर एंजॉय करता है, मेंबरशिप एंजॉय करता है, बट उसमें कोई प्रीऑक्यूपेशन नहीं होता है कि वो परमानेंटली अपना सेक्स चेंज करा सके। द थर्ड वन इज़ द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्डहुड। अगर हम बात करेंगे दिस डिसऑर्डर, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द ट्रांससेक्सुअलिज्म, लेकिन इसमें वेरी अर्ली एज में होता है, लगभग 2 to 4 years ऑफ एज में ही ये होता है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डिज़ायर टू बी द अपोजिट जेंडर, ठीक है, और इंसिस्टेंस ऑफ बीइंग द अदर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल बेबी गर्ल होगी, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ बेबी बॉय। सो ये हो सकता है इन द वेरी अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 4 years में ही ऐसा होता है। इसमें मार्क्ड डिसट्रस्ट रिगार्डिंग द एनाटमिकल सेक्स होता है विद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि नहीं मैं नहीं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ऐसा वो बोल सकते हैं, ठीक है। या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। इसमें क्या बच्चा कर सकता है, वो गेम्स खेलता है जो अपोजिट जेंडर खेलता है। लड़का होगा वो ज़्यादा गुड़ियों के साथ खेलेगा, वैसे ही कपड़े पहनेगा, गर्ल्स की तरफ चुनरिया ओढ़ेगा, ऐसा कुछ। या गर्ल अपोजिट सेक्स दैट इज़ द बॉय की तरफ बिहेव करेगी। एंड इट ऑल्सो
but its onset it is before the puberty. And although हम देख सकते हैं जो majority of the primary transsexuals have, they may have this gender identity disorder of the childhood in their past history, but जिनको हो भी होगी ये history of gender identity बचपन में, मैं प्राइमरी ट्रांससेक्सुअल्स की बात कर रही हूँ, तो ओनली वेरी फ्यू चिल्ड्रंस विद दिस जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इन प्रोस्पेक्ट टू स्टडीज एक्चुअली डेवलप द ट्रांससेक्सुअलिज्म। इसका ट्रीटमेंट भी हम यही देखते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट क्या हो जाता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का, इट इज़ सिमिलर दैट ऑफ द ट्रांससेक्सुअलिज्म, कि अगर व्हेन द एनाटॉमिकल सेक्स या जेंडर आइडेंटिटी आर अपोजिंग, दिस डिसीजन ट्रीटमेंट मे बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट कि वो क्या करना चाहता है आगे जाके। नेक्स्ट इज़ द इंटरसेक्चुअलिटी। इसमें जो क्लाइंट होता है विद दिस डिसऑर्डर, दे हैव द ग्रॉस एनाटॉमिकल और द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द अदर सेक्स। ठीक है, या तो उनको जो वो दिखते हैं उनको ग्रॉस एनाटमी किसी और सेक्स की, अपोजिट सेक्स की होती है। ठीक है, एंड दीज एक्सपेक्ट्स कैन बी इन, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल जेनिटल्स की बात करेंगे, अगर वो फीमेल है तो फिर क्या उसको बोलते हैं, उनको प्राइमरी सेक्स जो अगर वो फीमेल बॉर्न होगी जिसमें सीडो हर्माफ्रोडाइटिज्म आता है, प्राइमरी अगर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एक सेक्स के, मगर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल बेबी गर्ल बॉर्न हुई, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो बेबी गर्ल के ही हो, मगर वो डेवलप होते हैं बेबी बॉय के। ठीक है, तो उस तरीके से वो ये क्या इसमें आ जाता है। या गोनैड्स में कुछ होगा, जैसे कि वो टेस्टीज जिसमें बोथ टेस्टिकुलर एस्पेक्ट भी होगा या ओवेरियन एस्पेक्ट भी होगा, या इंटरनल सेक्स ऑर्गेनिज्म जिनको ऑर्गन्स जैसे कि यही ट्रू हर्माफ्रोडाइट, इसमें भी क्या उसको बोलते हैं ट्रू हर्माफ्रोडाइट में जिसमें बोथ द सेक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जिसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसमें मेल अगर होगा दैट इज़ XY फीटसेस, वो बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द एंड्रोजन दैट इज़ देयर मेल हार्मोन्स, वो उनके इनसेंसिटिव, तो ऑटोमेटिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगे फीमेल्स के। ठीक है, एंड instead they born looking like externally like the normal girls, लेकिन internally वो क्रोमोसोमल के हिसाब से XY होते हैं, मगर वो एक्सटर्नली बिल्कुल दिखेंगे आपको बेबी गर्ल की तरफ, वो हो सकता है। या क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इन द टर्नर सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जो आपको पता ही है, वो हो सकता है इसमें। Now coming to the psychological and the behavioral disorder associated with the sexual development and maturation, तो ये वो disorders of the development या maturation है where sexual orientation can cause the significant distress to an individual. For example sexual orientation क्या हो सकती है एक मतलब इंसान की, जिसमें orientation वो क्या बनना चाहता है, whether he wants to live like a girl, whether he wants to live like a बॉय, ऐसा कुछ। तो इसमें हमारा आता है होमोसेक्सुअलिटी। अगर हम होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ दे मे ऑकर अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, प्रोबेबली अंडर सम ह्यूमन कल्चर्स या मैमेलियन स्पीशीज़ में हो सकते हैं, बट दिस टर्म होमोसेक्सुअलिटी इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड होमो विच मीन्स द सेम एंड refers to the sexual preferences of the individual ऑफ द सेम जेंडर। उसको अच्छा लगता है सेम जेंडर के साथ रिलेशनशिप रखना, इसमें वो आ सकता है। और बेसिकली साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स में चाहे हेटेरोसेक्सुअल्स आए, होमोसेक्सुअल्स आए या बाइसेक्सुअल्स आए, इसमें कुछ भी आ सकता है।
एंड अगर हम बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी की ही, जैसे कि हम देखते हैं लेज़िबियंस, ठीक है, वो आ सकते हैं इसमें। एंड क्योंकि उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस फॉर एन इंडिविजुअल विद द सेम सेक्स होता है, फॉर एग्जांपल द टर्म लेज़िबियंस विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, वो हो सकता है। या वी कैन ऑल्सो सी द बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को कॉज कर सकते हैं, हैविंग द प्रेफरेंस टुवर्ड्स द सेम सेक्स। गर्ल है तो उसको प्रेफरेंस अपने ही सेक्स के साथ होगी, दैट इज़ द गर्ल। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज आ गई जिन्होंने ये प्रूव किया, सम कॉन्कोर्डेंस मिला है फॉर होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन इन मेजॉरिटी ऑफ द मोनोजाइगोटिक ट्विंस देन इन द डाइज़ाइगोटिक ट्विंस। तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ भी हुई इसमें। एंड बहुत बायोलॉजिकल स्टडीज़ ने ये भी पाया गया कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है इन द इटियोलॉजी ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी। एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो हाइपोथेसाइज्ड कि लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोइन्स लोअर हो सकते हैं या लेवल्स ऑफ द एस्ट्रोजन हायर हो सकते हैं इन द होमोसेक्सुअल मैन एंड देन इन द हेटेरोसेक्सुअल मैन। तो ये हो, या साइकोसोशल थ्योरीज आ गई रिगार्डिंग द होमोसेक्सुअलिटी, जिसमें उन्होंने they theorize that all the individuals go through this homoerotic phase in the child, and thus if the homosexuality occurs in the later life, it is due to the arrest of the normal psychosexual development। जैसे नॉर्मल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है एक फेज़, ये भी पाया गया कि होता है होमोएरोटिक फेज़ चिल्ड्रन में। अगर वो चिल्ड्रन उस फेज़ में स्टक हो गया तो in the later life he may develop the homosexual कैरेक्टरिस्टिक्स। या कुछ थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती है कि डिसफंक्शनल फैमिली पैटर्न होगा, वो इटोलॉजी कर सकती है क्रिएट इन द होमोसेक्सुअलिटी। नर्चरिंग कैसी है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है, sometimes it is more significant in the relationship with the same gender parent। तो वो हो सकता है, in that way it can cause the homosexuality in the future। और अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करेंगे तो इसमें बाइसेक्सुअल इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल, दैट मीन्स ही और शी एंगेजेस इन द सेक्सुअल एक्टिविटी विद द members of both genders। He does not have any problem having the relationship with the same sex। For example, if she is if a person is female, she can have the relation with the female also, she can have the relation with the male also, that is called as the bisexuals। तो वो हो सकता है। and there are diversity in the sexual preferences in these bisexuals, and some individuals they prefer men and women equally, whereas others they have preference for one gender only but also accept the sexual activity with the other gender। ठीक है, ऐसा हो सकता है। and some bisexuals they may alternate between the homosexuals or the heterosexuals। so ऐसा ये मतलब वो कर सकते हैं। So and there are also the various predisposing factors जो पाए गए in the etiology of the bisexuals। इनमें जैसे कि हम inherited bisexual characteristics की बात करेंगे, assumptions पाई गई कि pathological conditions हो सकती है in the childhood, या क्या इसको बोलते हैं उनको कुछ ऐसा homosexual encounter हुआ होता है पहले ही in the childhood कि later वो ये वाले characteristics develop कर सकते हैं। that is the homosexual character, this bisexual characteristics। so these were the sexual disorders and the various gender identity disorders and the various psychological and the behavioral disorders associated with the sexual development and maturation। thank you, this was all about this video। hopefully you got it। I'll be ready with the next video soon inshallah taala। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh।